कैसे हो सब? क्या हुआ, एक दिन में ही थक गए तुम 1:30 को? हाँ, came to know that कि you have to take a 10 minutes or up and down, I think, when you're going to your hostel to take your food. चलो, don't worry. So we'll complete it by 1:15. Fine. चलो, तो next Sunday onwards, we'll try to take on Sunday as well. I hope you by that time your law will be over. अच्छा, अभी भी mostly है? हाँ? What happened, sir? Okay. During the whole week, no classes. Law classes are only on what? But when did the law start? From February. February 14. You know the law now, you have to be major if you want to date someone. No problem. Sir. बस. तो कहां पे पहुंचे अभी? We have started with the Caro 2020. If I'm not wrong, in the Caro 2020, I think I already made you understand the little bit of background of this Caro. पहले ये बताओ, Caro 2020 से पहले कौन सा Caro था? Caro 2016. Are you getting the point? Caro 2016. Caro 2016, when did it come? 29th March 2016. And when the Caro 2020 came? It came on 25th February 2020, but was deferred for how many financial year? So original was 1920 financial year, but now it is applicable from 21. So 2 times it was deferred due to the pandemic situation in India. So due to the reason, the Caro 2020 was not applicable in India since 1920, and now it is made applicable from 21-22. Okay. So after that, what we have understood, I told you about the applicability of the Caro, if I'm not wrong. ये discuss हो गया था अपना. So applicability of the Caro में what we understood, to whom it is applicable? It is applicable to all the companies, including the which company? Foreign company. So it is applicable to all the companies, including foreign companies. So when we talk about the foreign companies, what is the first thing comes to your mind? Foreign companies are which companies, everyone? Companies which are incorporated outside India, being a place of business in India. So all the companies in India are covered under the Caro, including the foreign companies. But if you are coming under the category of these 6 companies, what are those? Section 8, OPC, banking, insurance, small, private limited company. Private unlimited company? Private limited company? Not applicable. NBFC? NBFC, applicable. Banking? Sure. NBFC converted into a bank. It was applicable, but later on it will not be applicable. और अगर vice versa हुआ तो? It was not applicable when it was a bank. Later on it will become applicable. And one most important thing you have to understand that कि Caro is never applicable on consolidated financial statements. It is never applicable on what? उसका रीजन भी बताता हूं. अच्छा, ये बताओ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन कंपनी और मल्टीपल कंपनी. So we will not be able to understand that ki whose profit is how much. Am I correct? It is a consolidated profit. It's a consolidated fixed assets. It's a consolidated liabilities. So we will never come to know about the individuality of every company, right? So Caro is all about individuality. So it is applicable on standalone financial statements, but it is never applicable on consolidated. यहां तक कोई doubt? No doubt. उसके बाद हमने किया था कि the second trap where you may fall is the electricity company. Are you getting the point? Sometimes क्या होता है, out of flow we say that banking, insurance, electricity, and out of the flow sometimes we say that OPC, small, dormant. So you have to be very careful कि this is an exhaustive list of 6 companies. इसके अलावा ना तो कोई अभी तक कुछ add हुआ है ना subtract हुआ है. तो this is an exhaustive list. You are not allowed to add on or delete anything from this list. So which is the private company we are talking about now? Private, limited or unlimited? To them Caro is not applicable. But then I think we further extended also कि when it is not applicable to private limited company, when the 4 conditions are satisfied, this private limited company should neither be a holding nor a subsidiary of an
पब्लिक कंपनी। अगर आपका किसी पब्लिक कंपनी के साथ होल्डिंग और सब्सिडरी रिलेशनशिप है तो देन कारो विल बी ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल बिकॉज दैट पब्लिक कंपनी इज ऑलरेडी कवर्ड अंडर कारो। तो बीइंग अ होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ दैट पब्लिक कंपनी यू विल ऑल्सो गेट कवर्ड अंडर व्हाट? कारो। लॉजिक समझ में आया? पॉइंट नंबर 2, योर टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स shall not exceed 1 crore. आपका टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व shall not exceed 1 crore on the balance sheet date. Sir, question arises, when do we have to test it? We have to test that on the last audited financial statement. Which audited? अब मेरे को आज टेस्ट करना है। आई वॉन्ट टू टेस्ट इट टूडे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, आई एम क्रिएटिंग अ नोशनल एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का मेरे को आज चेक करना है कि वेदर इट इज कारो इज एप्लीकेबल और नॉट। तो आई एम टेस्टिंग इट ऑन 10 जून। इज इट 10 टुडे? आई एम टेस्टिंग इट ऑन 10 जून। बट 10 जून को टेस्ट करने के लिए आई हैव टू गो टू द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 22-23 financial year are available or not available? Not available. So which one is the latest one available? 21-22. तो अपन 21-22 का रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल ओपन एंड विल सी इट्स व्हाट? बैलेंस शीट। अगर वहां पे टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व डज नॉट एक्सीड 1 crore, then it is not covered. But the moment it will breach the level of what? 1 crore, it will turn into a applicability. क्रिस्टल क्लियर? तो दोनों कंडीशन समझ में आ गई। थर्ड कंडीशन क्या थी? आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वी डू नॉट हैव टू चेक इट ऑन द बैलेंस शीट डेट। डोंट वरी, आई विल टेल यू द इन डिटेल हाउ यू हैव टू गो विद दिस। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द फोर कंडीशन। पहली क्या थी? नाइदर अ सब्सिडरी नॉर अ पब्लिक। ऑफ अ विच कंपनी? पब्लिक कंपनी। सेकंड कंडीशन क्या थी? टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व शैल नॉट एक्सीड 1 crore. थर्ड कंडीशन क्या थी? आउटस्टैंडिंग बोरिंग शैल नॉट एक्सीड 1 crore. एंड द फोर्थ कंडीशन वाज, अच्छा फोर्थ कंडीशन में ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। क्या लिखा हुआ है? टर्नओवर ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन प्लस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इन केस यू हैव शट डाउन एनी ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग द ईयर till the time it was running, that turnover also we are going to add it. जैसे say for example, मेरे दो बिजनेस थे, आयरन एंड स्टील एंड सीमेंट का। आयरन एंड स्टील बिजनेस आई डिड इट फॉर 8 months, बट स्टील बिजनेस आई डिड इट फॉर 12 months. तो विच वन थ्रू आउट द ईयर? स्टील. तो दैट टर्नओवर तो डेफिनेटली विल टेक। आयरन एंड द टेक्सटाइल बिजनेस आई डिड इट फॉर व्हाट? 8 months. But for the 8 months also I sold the items or not? So that 8 months of discontinued operation turnover also is to be added. So what are the two turnovers we need? Continuing operation turnover plus, और अगर आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो तो सर्विसेज टर्नओवर। विच टर्नओवर? अब जैसे मान लो मेरा ऑफिस है, मेरा प्रैक्टिसिंग ऑफिस है, तो मैं क्या गुड्स बेचता हूं? एम आई डूइंग द सेल्स और एम आई रेंडरिंग द सर्विसेज? तो वे सर्विस टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे कंपनी का। डिड यू गेट द पॉइंट? तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग, बोथ विल बी एडेड। दे बोथ पुट टुगेदर शैल नॉट एक्सीड 10 crore. तो अपना लिमिट क्या हुआ? फर्स्ट वाली में वी हैव टू टेस्ट दैट इट शुड नाइदर बी अ होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। सेकंड वन में अपने को टेस्ट करना है कि उसका टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व शैल नॉट एक्सीड 1 crore. थर्ड में अपने को क्या टेस्ट करना है? उसका आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स शैल नॉट एक्सीड 1 crore. और फोर्थ में अपने को क्या टेस्ट करना है? कि टर्नओवर इंक्लूडिंग डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन टर्नओवर शैल नॉट बी एक्सीडिंग। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज नॉट कवर्ड अंडर कारो। डेयर यू नॉट सेटिस्फाई अ सिंगल कंडीशन, कारो विल बिकम ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल। क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है। अभी अपन थोड़ा सा इसमें थोड़ा डीप डाइविंग करेंगे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रिजर्व्स, आउटस्टैंडिंग बोरिंग में क्या चेक करना है, क्या चेक नहीं करना। क्योंकि इन द कारो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, there are two types of questions they may ask you in the Caro. Let me tell you one thing. एक तो क्वेश्चन बन सकता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कारो एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, एंड अनदर क्वेश्चन दे मे आस्क यू ऑन द 21 clauses which we are going to read. So today's session and tomorrow's session completely dedicated on what? Caro. So you can see that this is going to be the biggest topic where you are going to spend the most of the time. ठीक है? And this topic deserves 6 to 8 marks in your exam. ठीक है ना? तो you can't think of leaving this, and obviously the new topic means what? कि ICAI will be very much eager to test you guys on this amendment. ठीक है? तो एक एक चीज in a single threaded manner
वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू डू द डीप डाइविंग, क्योंकि ये सेम टॉपिक 16 मार्क्स कम्स इन योर सीए फाइनल. So I'm not going to make any differentiation between you as an intermediate student or CA final. The effort which we make generally in the CA final teaching पे, same effort wise I'm going to teach you each and every concept here in Karo. अपना major devotion होगा 21 clauses पे, and I already told you 21 clauses should be there inside you in a sequential manner. In which manner? You can't just learn 21 clauses. You have to learn the 21 clauses in sequence. So which is clause number 1, 2, 3, 4, that like that. You have to understand that. So little bit of patience and little bit of hard work is more required. ठीक है, पहले अपन डीप डाइविंग करेंगे सर, प्राइवेट लिमिटेड का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म कर देंगे. देखो, आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट. इसमें बहुत सिंपल लाइन है. व्हाट इज अ सिंपल लाइन? अब नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन. आई एम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बट आई एम एन एसोसिएट ऑफ अ पब्लिक कंपनी. इज कारो एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? क्योंकि व्हाट आर द टू रिलेशनशिप वी हैव टू टेस्ट? मैं होल्डिंग नहीं होना चाहिए, सब्सिडी. एसोसिएट जॉइंट वेंचर चलता है. डिड यू गेट द पॉइंट? तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ डिस्कशन ऑन दिस पॉइंट. वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन डिस्कसिंग दिस कि सर टोटल पेड अप शेयर कैपिटल में क्या क्या ऐड होगा और फ्री रिजर्व्स में क्या क्या ऐड होगा. पुट टुगेदर दे शैल नॉट बी बियॉन्ड 1 करोड़. अब सुनना ध्यान से. नाउ what is the definition of the first thing we are going to understand? Total paid up share capital. पहले तो ये बड़ा total paid up share capital में क्या क्या ऐड होगा. क्या होगा? ESC. What is ESC? Equity share capital plus minus calls in arrears. Minus what? Minus calls in advance and minus share application money whose allotment is pending. क्योंकि जब आप शेयर एप्लीकेशन मनी किसी बंदे से लेते हो और आप अलॉटमेंट कर देते हो, इट मींस दैट इज योर मनी. बट टिल द टाइम यू हैव नॉट डन द अलॉटमेंट, वी कीप इट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विच वी आर अलाउड टू टच और नॉट अलाउड टू टच. नॉट, क्योंकि अगर अपना 90% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया सेक्शन नंबर 39 अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अगर अपना 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया डज नॉट फुलफिल, डू वी हैव टू रिफंड द मनी और नॉट? So that's why you are allowed to keep that, allowed to use that money, or you are allowed to keep that money in a separate bank account. और यहाँ पे पैसा कौन सा है? Share application money which the company has received, but whose allotment is what? Pending. इसका मतलब allotment pending है, तो you allotted or did not allot, so that is not your money. So you have to reduce it. अच्छा, calls in area received or not yet received? That is also not your money yet. Calls in advance, you made the call or already paid, but till the time it is not yet called, it is not your money. Are you getting the point? So tell me one thing, what are the two things adding and three things we are subtracting? Equity share capital, calls in advance, share application pending money. ये 5 चीजों का एडजस्टमेंट में करना है, एंड दिस पुट टुगेदर इज नोन एज पेड अप शेयर कैपिटल. अब समझ में आ रहा है अपन डीप डाइविंग का मतलब क्या था? कि we have to understand कि if question will come, we should be in a position to answer our answer. Right? Now, what is the second thing we have to understand? Free reserve. सब free reserves की इतनी मस्त definition दी हुई है. उन्होंने बोला free reserves means all the reserves. Let it be capital reserve or let it be what? Revenue. जितने भी liability side पे जितने भी reserves आ रहे हैं, सबको ऐड कर दो. सर DRR भी ऐड कर देंगे? हाँ. Revaluation reserve भी ऐड कर देंगे? हाँ. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी ऐड करेंगे? हाँ. क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, एनी काइंड ऑफ रिजर्व coming on your which side? Liability side is going to be added. So read the point number 1, includes what? Either capital or revenue as per schedule 3. Plus even the revaluation reserve is also to be considered. But अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग? इज इट अ प्रॉफिट और लॉस? अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना. डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट इज गिवन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. अब अपन क्या करेंगे, पहले वो डेबिट बैलेंस को अपन फ्री रिजर्व्स के साथ एडजस्ट करेंगे. क्या करेंगे? सब मान लो फ्री रिजर्व 20 करोड़ है, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट इज 15 करोड़. तो हाउ मच माय फ्री रिजर्व्स आर लेफ्ट? 5 करोड़. बट से फॉर एग्जांपल माय फ्री रिजर्व्स आर 15 करोड़ एंड डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट इज 20 करोड़. अब पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया, फ्री रिजर्व्स आर देयर और गॉन. स्टिल हाउ मच लॉस इज पेंडिंग?
then the pending loss you have to adjust it with the paid up share capital. Did you understand the point? First, the losses to be adjusted with what? Free reserves. If the free reserves are unable to cope up with your total losses, the pending losses after adjusting with what? Free reserves are then required to be adjusted with capital. तो पहले किससे एडजस्ट करेंगे? फ्री रिजर्व. अगर बच गया तो पेड अप शेयर कैपिटल. क्रिस्टल क्लियर है? अब देखो, अगर लॉसेस हुआ डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल तो फर्स्ट एडजस्ट फ्रॉम व्हाट? रिजर्व्स एंड सरप्लसेस. इफ स्टिल मोर देन एडजस्टेड फ्रॉम व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल. यहां तक समझ में आया? प्रोविजंस को अपने को क्या करना है? इग्नोर. अब तो मुझे बताओ, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व में कोई डाउट? टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल? इक्विटी प्रेफरेंस माइनस कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एडवांस. Which share application money will reduce? Whose allotment is pending? Free reserves में क्या क्या ऐड करेंगे? सारे reserves. Revenue रहने दो, capital रहने दो. All the reserves we are going to add minus losses if any. First to be adjusted with reserves and surpluses, and later on if extra is there. Did you get the point? Provisions को क्या करना है अपने को? Ignore. अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो 1 करोड़ का लिमिट आपको कैसे कैलकुलेट करना है? यस. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ? बोरोइंग्स. सर बोरोइंग्स का मतलब क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स. व्हाट इज द वर्ड यूज्ड? ऑल द टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स यू हैव टू कंसिडर, आइदर इट इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म, और सारी बोरोइंग्स को ऐड करना है. टू बी टेकन टुगेदर एग्रीगेटली, नॉट व्हाट? Individual. 1 crore limit is not on one borrowing. 1 crore limit is on borrowings. What is the word we have used? Borrowing. सारी borrowings को add करेंगे and that should not be more than what? 1 crore. But in case of OD, what is OD? Overdraft. अब मैं थोड़ा सा एक concept बताता हूं. Maybe you will understand because that is your FM concept. FM started? Not yet. चलो कोई नहीं होता. You will be able to tell the sir कि you know this concept now. अब सुनो, ओवरड्राफ्ट दो तरह के होते हैं. एक होता है विदाउट सिक्योरिटी, एक होता है विद सिक्योरिटी. व्हाट इज द फर्स्ट वन? विद सिक्योरिटी ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? से फॉर एग्जांपल आई हैव 80 crores ऑफ एफडीज विद एसबीआई. हाउ मेनी crores ऑफ एफडी आई हैव मेड? और मैंने एसबीआई से 80 crores का ओडी लिया हुआ है. व्हाट इज ओडी? दैट इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड? In case I'll be unable to repay their 80 crore rupees of OD, overdraft loan, what they will do? तो ये secured वाला है, unsecured है? Secured वाला है. अब सुनना ध्यान से. In case of what? OD. What is OD? Overdraft facility. Gross to be taken. What to be taken? अगर मान लो मेरी OD है 100 crores की. What is the limit of my OD? और मेरा FD, which I have given the FD is what? 80 crores. What is the net of that? 20. What is the net of that? But do we have to take a net or we have to take a gross? So does that matter or does not matter? What we have to take? 100 crores. So in case of OD, one extra point you have to remember, you don't have to do the net of security. You have to take what? Gross. Next point. To be checked at what? एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इसके ऊपर अभी अपन आएंगे. बट नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इवन द क्रेडिट कार्ड बिल्स ड्यू टू बी व्हाट? एडेड. अगर तुम्हारे छोटे छोटे क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? लोन ही होता है ना सर. 48 डेज का लोन होता है. क्रेडिट कार्ड का बिल यू हैव टू पे इट विद इन हाउ मेनी डेज? 48 डेज टू 50 डेज. तो दैट इज नथिंग बट अ लोन ऑफ शॉर्ट टर्म ऑफ 40-50 डेज. एम आई करेक्ट और नॉट? तो दिस इज व्हाट ऑल यू हैव टू रिमेंबर अबाउट व्हाट? बोरोइंग्स. तो बोरोइंग्स में अपने को कुछ भी रिमेंबर नहीं करना है. सिर्फ वन एडजस्टमेंट यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग व्हाट? ओडी. ओडी में अपने को क्या लेना है? नेट या ग्रॉस? अब सुनना ध्यान से, इस पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे. व्हाट इज दिस पॉइंट? ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो कि डिड आई ब्रीच 1 crore और नॉट. ठीक है. 7 जून 2021 को मैंने एसबीआई से लोन लिया वर्थ ₹40 lakhs. हाउ मच इज द लोन? 40 lakhs. फिर 8 सितंबर 2021 को मैंने एसबीआई का 25 crores का लोन रीपे कर दिया. हाउ मच आई रीपेड? 10th दिसंबर 2021 को आई टुक लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक वर्थ
85 lakhs worth rupees how many lakhs? फिर मैंने 1 जनवरी 2021 को मैंने एक HDFC से लोन लिया वर्थ रुपीज 1 लाख वर्थ रुपीज व्हाट, और 31st दिसंबर सॉरी 31st मार्च 2022 सॉरी दिस इज 22 31st मार्च 2022 को आई रीपेड 90 lakhs टोटली, एंड मेरा 31st मार्च को कितना बैलेंस हुआ एक बार ऐड करना सारा, 40 था, 40 में से 25 lakhs गॉन, 15 प्लस 85 100 101 101 माइनस 90 11। अब तो मुझे बताओ कारो इज एप्लीकेबल ऑन मी? श्योर? इज देयर एनी मोमेंट यू सॉ इन द होल फाइनेंशियल ईयर व्हेन आई ब्रीच द लेवल ऑफ 1 करोड़? कौन सा टाइम था वो? देखो यहां पे मेरा 40 lakhs का बैलेंस है, यहां पे मेरा 15 है, यहां पे क्या हो गया 100, बट इट वाज नॉट मोर देन 100। बट यहां पे जब मैंने 1 लाख का लोन लिया तो क्या हो गया 101, इवन दो आई पेड व्हाट 90, हियर इट इज ओनली व्हाट 11। बट टेल मी वन थिंग, डिड आई टेल यू टू सी इट ऑन द बैलेंस शीट डेट और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? इसे बोलते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो बैलेंस शीट की डेट पे तो इट इज ओनली व्हाट 11 lakhs। So if we'll see it on the balance sheet date, then I am not liable. But we are not going to see the borrowings wala case on the balance sheet date. We have to check the borrowings case when? At any point of time during the way. 1% for a single second, your balance sheet shown more than 100 lakhs, then in that case you are covered under what? Karo. समझ में आ गया sir example? तो this is what is going to, we are going to know about what? Borrowings. तो अपने को तीन चीजें पता चल गई, total paid up, share capital, फ्री रिजर्व्स एंड बोरिंग। क्रिस्टल क्लियर है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? टर्नओवर। अभी टर्नओवर क्या करना है, यू ऑलरेडी नो दिस पॉइंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। टर्नओवर इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ टर्नओवर, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं तुम्हें बोल रहा हूं, टेल मी इज देयर अ लॉजिक और नॉट? समटाइम्स कंपनी रिकॉर्ड्स द टर्नओवर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड कस्टम्स। जैसे मान लो 100 रुपए का बिल है, उसके ऊपर 5% जीएसटी है, तो टोटल वैल्यू कितना होगा 105। दे विल रिकॉर्ड 105 इन द सेल्स। अब तो मुझे बताओ 105 रुपीज में हाउ मच इज जीएसटी? इज इट माई रेवेन्यू और गवर्नमेंट से रेवेन्यू? गवर्नमेंट। तो अपने को क्या करना है, जीएसटी और कस्टम्स को माइनस करना है। व्हाट डू वी हैव टू माइनस? इफ इट इज इंक्लूडेड, इफ इट इज व्हाट इंक्लूडेड, बट इफ इट इज गिवन सेपरेटली, 100 सेपरेट दिया, जीएसटी सेपरेट दिया, देन इग्नोर। इफ इट इज गिवन सेपरेटली, देन व्हाट? इग्नोर। बट इफ इट इज गिवन क्लब्ड, सेपरेट। हाउ डू वी सेपरेट? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टोटल 105, 5 रुपीज को सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि मेरा रेवेन्यू इज समथिंग इज 100, 5 रुपीज आई एम कलेक्टिंग फ्रॉम द कस्टमर, बट दैट इज नॉट माई रेवेन्यू, दैट इज अ रेवेन्यू आई एम गोइंग टू पे टू हुम? गवर्नमेंट। तो वो मेरा टर्नओवर थोड़ा हुआ, दैट इज हुज टर्नओवर? गवर्नमेंट्स टर्नओवर। Did you get the point? Point number 1. And what are the two extra things you have to deduct? If you will see this word in the question, what is this word? अगर ट्रेड डिस्काउंट आया तो सेल्स में से माइनस कर देंगे, एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू डिडक्ट इज दिस वर्ड। व्हाट इज दिस वर्ड? सेल्स रिटर्न। नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब सुनना ध्यान से जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 17-18 फाइनेंशियल ईयर में आई डिड सम सेल्स, उसका रिटर्न आया मेरे को 21-22 फाइनेंशियल ईयर में। I sold when? 4 years back. लेकिन उसका सेल्स रिटर्न कब आया? 21-22. Is it belonging to the sales return of current financial year or 4 years back? Allowed to be reduced. Sales return तुम्हें allowed है, क्योंकि that year you booked it as a what? Sales. This year you have to unbook it as a what? Returns. समझ में आ रहा है? तो इट डज नॉट मैटर कि सेल्स रिटर्न्स आर प्रिवेलिंग और दे आर एसोसिएटेड विद विच ईयर, द मोमेंट यू विल सी द सेल्स रिटर्न, रिड्यूस इट। तो डज इट मैटर फॉर द करंट ईयर और एनी ईयर? तो टेल मी, टर्नओवर में क्या क्या चीजें हमने समझी? 2 चीजें। पहले तो कंटिन्यूइंग प्लस डिसकंटिन्यूइंग, और अगर जीएसटी एडेड हुआ तो, सेपरेट हुआ तो इग्नोर। एंड व्हाट आर द 2 थिंग्स यू हैव टू एडजस्ट? सेल्स रिटर्न as well as what? ट्रेड डिस्काउंट। सर कैश डिस्काउंट क्या होता है? यहां पे लिखा है कैश डिस्काउंट, बट मेरे को ये बताओ, अगर कैश डिस्काउंट आया तो तुम क्या करोगे?
यू आर गोइंग टू कीप इट और यू आर गोइंग टू इग्नोर इट? क्यों इग्नोर करोगे? क्योंकि मैंने बोला। डिड आई टेल यू दैट ओनली ट्रेड डिस्काउंट? अच्छा ये बताओ, एज अ गुड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट विच वी गिव इट टू एवरी कस्टमर। जैसे अगर आप हैदराबाद सेंट्रल में जाते हो तो 70% ऑफ है, तो आप सबको 70% ऑफ है, नॉट टू हर और नॉट टू हर स्पेशली, टू एवरीवन। Cash discount is a discount generally we offer it to debtors to get the early payment. To get the which payment? That is only being offered to a particular person, but trade discount is offered to all. So that is to be reduced, not to be reduced what? Cash discount. I think now you are ready to do one question. If I am not wrong, ready हो? Should I ask you one question? सब लोग आंसर दोगे? राइट दोगे या रॉन्ग दोगे? हाँ, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो इसका मतलब अपना 40% ऑफ द कारो टॉपिक इज ओवर, क्योंकि दिस इज अ वन सेट ऑफ क्वेश्चन विच यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशन। दे मे आस्क यू द एप्लीकेबिलिटी ऑन विच कंपनी। इस क्वेश्चन का आंसर दो। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? चलो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। क्या है नाम? पूरा नाम पढ़ो। एबीसी प्राइवेट कंसल्टेंसी लिमिटेड। तो ये प्राइवेट लिमिटेड है। इट इज एन एसोसिएट ऑफ विच कंपनी? ठीक है, हैविंग द फॉलोइंग व्हाट? फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल नंबर 1, उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? प्रेफरेंस कितनी है? फ्री रिजर्व कितना है? रिवैल्यूएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, लेकिन डेबिट बैलेंस और पीएनएल दिया हुआ कितना? 60 लाख। ये है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, इसका बैंक लोन कितना है? फाइनेंशियल असिस्टेंस लोन कितना है? क्रेडिट कार्ड के ड्यू बिल्स कितने हैं? ओडी फ्रॉम एसबीआई कितना है? 20 lakhs। ओडी फ्रॉम एचडीएफसी कितना है? एंड एफडी अगेंस्ट द ओडी इज हाउ मच? 39 lakhs। और इसका थर्ड कंडीशन क्या है? करंट सीमेंट टर्नओवर कितना है? टेक्सटाइल टर्नओवर कितना है? अरे किधर गया? अरे कहां गया? हाँ, सीमेंट टर्नओवर कितना है भैया? टेक्सटाइल टर्नओवर, सर्विसेज रिसिप्ट्स, सेल्स रिटर्न, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, मेरे को इसका आंसर बताओ। टेक द 2 minutes एंड गिव मी द आंसर। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन तो बोल देता हूं मैं। कारो इज एप्लीकेबल ऑन दिस कंपनी और नॉट? हो भी गया? इट इज अ व्हाट? तो डू वी हैव टू चेक द आंसर? सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया अम्मा। व्हाट आर द 2 relationships विल कंसिडर अम्मा? शी इज एन एसोसिएट। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की एसोसिएट है। इसका मतलब कारो इज नॉट येट एप्लीकेबल। अपने को कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? नॉट वन ऑफ देम, यू हैव टू सेटिस्फाई, यू सेटिस्फाइड ओनली वन ऑफ देम, इट इज एन एसोसिएट। नहीं तो मैं पागल हूं क्या इतना बड़ा क्वेश्चन लिखूंगा? अरे यार तुम लोग थोड़ा एफर्ट की इज्जत तो करो। मैं भी सोचू 1 सेकेंड में आंसर कैसे हो गया कि एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी अम्मा, वी हैव टू सेटिस्फाई 4। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड? इज एबीसी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी और एसोसिएट? तो अपनी पहली कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाइड। सो फार दिस कंपनी पे कारो इज नॉट एप्लीकेबल। अब ये सेकंड कंडीशन देखो, सी दिस सेकंड कंडीशन। इक्विटी 80 lakhs, प्रेफरेंस 30 lakhs, एफआर 23 lakhs, आरआर 7 lakhs, आईएआर 13 lakhs, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट 60 lakhs। हाँ, दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। कैसे किया बताना मेरे को? 80 को ऐड किया, 30 को ऐड किया, 110 प्लस 123, 23 को ऐड किया 133, 7 को ऐड किया 140, 13 को ऐड किया, तो यहां तक कितना हो गया? 153 में 110 इज पेड अप शेयर कैपिटल, एम आई करेक्ट? उसमें 60 lakhs अपना क्या है? लॉस है। तो पहले लॉस 43 में हमने एडजस्ट कर लिया लॉस। ऑल द रिजर्व्स ऑफ 43 lakhs आर एडजस्टेड इन व्हाट?
लॉस. इज देयर अ स्टिल पेंडिंग लॉस? कितना? तो 17 को 110 से एडजस्ट करेंगे अभी, तो कितना बचा? वेरी नाइस. तो पहली कंडीशन तो होगी क्या भैया? सेटिस्फाइड. क्लियर, वेरी नाइस. सेकंड, इसका मतलब टिल द टाइम टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कारो इज स्टिल नॉट एप्लीकेबल. ये पढ़ो. 8 लाख का बैंक लोन है, 32 का फाइनेंशियल असिस्टेंस लोन है, टोटल हो गया 40. क्रेडिट कार्ड ड्यू हो गया 16, तो ये हो गया 56. दो लोगों से ओडी है, 56 प्लस 40 कितना हो गया? 90. और एफडी अगेंस्ट ओडी कितना है? अपन रिड्यूस करेंगे. अरे नेट लेंगे या ग्रॉस लेंगे? तो ये पॉइंट को अपने को कंसीडर करना है या इग्नोर करना है? तो टोटल 90 हुआ, 96 नॉट एक्सीडिंग. तो ये कंडीशन भी क्या होगी? सेटिस्फाइड. सो फार कारो इज नॉट एप्लीकेबल. और ये हो गया अपना थर्ड वन. थर्ड वन देखो, 8 करोड़, 8 प्लस 4 12 करोड़, 12 प्लस 1 13. सर्विसेज का टर्नओवर भी ऐड होगा, तो 13 हो गया. 13 माइनस 2.9, 13 माइनस 2.9 1 10.1, 10.1 माइनस 40. अरे अच्छा, कैश डिस्काउंट है इसलिए नहीं माइनस कर रहे. अच्छा नेक्स्ट, तो 10.1 माइनस 23, इट इज 9.87. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो फोर्थ कंडीशन भी क्या हो गई? तो कारो इज. बट विल योर आंसर चेंज इफ आफ्टर 6 months ग्लोबल लिमिटेड एक्वायर्ड 35% मोर इन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड? क्यों भाई? एसोसिएट का मतलब होता है 20%. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को अपन क्या बोलते हैं? एसोसिएट. मतलब एटलीस्ट 20%. जब उसने 35% और ऐड किया तो क्या हो गया? तो अभी ये स्टिल एसोसिएट है. क्या बन गई? तो नाउ कारो इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? कारो विल बिकम एप्लीकेबल, क्योंकि पहली कंडीशन ही डिससेटिस्फाई हो गई ना. यू शुड नाइदर बी अ होल्डिंग नॉर अ सब्सिडी. Now ABC Consultancy Private Limited, after 55% acquired by the Global Limited in that company, the ABC will become its what? Subsidiary. So you became a subsidiary of which company? Global Limited. Global Limited is a which company? Public company. Therefore condition number 1 itself got what? Dissatisfied. Caro will become applicable. So I think now you understood ki how the question in the Caro applicability they may ask you. Or definitely if they have to ask you a 4-mark question, they will definitely ask you from being what? Private limited company. क्योंकि public limited company तो always covered under what? Caro. यहाँ तक कोई doubt है तो बोलो. No doubt? पक्का? Now, there are some extra things you have to learn about the Caro, and I think point number 1 I already told you. What is the point number 1 I told you? Caro 2020 applies to the which financial statements, everyone? Standalone. It does not apply to CFS. What is CFS? Next one. Clause, it does not apply to CFS. Again यहाँ पे लिखा हुआ है. लेकिन clause number 21 में when we will reach to the end of the Caro, I will tell you something is there in the clause number 21 which is a little bit exception. You don't have to worry about that. ये क्या लिखा हुआ है? Question number 3 पढ़ो और मेरे को आंसर बताओ. इसका मीनिंग क्या है? In case of what? Branches, it shall be considered from complete group results point of view, not from each and every branches point of view. अब सुनना ध्यान से. मैं हूं हेड ऑफिस. As a head office, I have 8 branches. I have how many branches? हर एक ब्रांच में मेरा 13 lakhs का वो है पेड अप शेयर कैपिटल. कितना? तो इसका मतलब sometimes you know what companies will do? Sometimes to avoid the Caro applicability, companies will divide their business into branches. And branches में क्या करें? आप बताओ. If I will have in one particular branch और वन पर्टिकुलर हेड ऑफिस में मोर देन 1 करोड़ ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, कारो विल बी ऑटोमेटिकली बिकम. मैंने अपनी 1 करोड़ की कैपिटल को क्या किया? 8 ब्रांचेस में स्प्रेड कर दिया. क्या कर दिया? एक में 13, एक में 14, एक में 9, एक में 10, लाइक दैट. एम आई ट्राइंग टू एस्केप द कारो? तो लॉ क्या बोलता है भैया? डोंट टेल योर फादर टू हाउ टू बी अ फादर. डोंट अपना रौनक सर का डाले हुए ना, डोंट टीच योर फादर how to be a father. Am I correct? ऐसे कुछ बोलते हैं. Don't teach your father what? How to? चलो जो भी है, सेम कॉपी पेस्ट डायलॉग ऑफ रौनक सर. अब मेरे को ये बताओ,
अभी ये 8 ब्रांचेस को पुट टुगेदर करेंगे, इज इट कमिंग मोर देन 1 करोड़? तो वो क्या बोलते हैं, जब हम लोग कारो चेक करेंगे ना, तो वी विल नॉट चेक इट ब्रांच वाइज, वी विल चेक इट ग्रुप वाइज. But we'll check it what? Group wise. अगर group wise total paid up share capital or outstanding borrowing or turnover level breaches, then in that case Caro will become applicable. But what is fourth point they are saying? Read it. Once the Caro covered on what? Entire group of branches, then all the branches auditors shall report individually on the Caro for each and every branch. While testing will club the branches, but while reporting will keep the each and every branch separately. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैंने तुम्हें कल पहले बता दिया था, एंड विच सो मेनी पीपल टीचेस यू रॉन्गली. क्या बोलते हैं सब लोग? क्या बोलते हैं कि कारो इज अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट. इट इज अ विच रिपोर्ट? डिड आई टेल यू द सेम? आई टोल्ड यू देयर इज ओनली वन ऑडिट रिपोर्ट. कारो को अपन क्या करते हैं? अटैच करते हैं. इट इज ए नॉट अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, इट इज एन अनेक्स्चर टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडिट रिपोर्ट. पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 6, कारो अप्लाइज टू whom? NBFC. But if such NBFC later get converted into a bank, it does not apply. Or if it was a bank first or later on turned into what? NBFC. It was not applicable and later on it will become applicable. And the most important point is Caro 2020 has to be seen from which point of view? ये इसके स्पेलिंग पढ़ो, क्या लिखे हुए हैं? प्रोप्राइटी. कोई बता सकता प्रोप्राइटी का मतलब क्या होता है? ये तुमने सेक्शन नंबर 148 कॉस्ट ऑडिट में करा हुआ है. करा है ना लॉ में 148? हाँ कि ना? कॉस्ट ऑडिट. तो प्रोप्राइटी का मतलब क्या होता है? अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूं, सुनो. इफ यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ अ रिलायंस, जस्ट अ नॉर्मल कैजुअल एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रोप्राइटी. यू आर डूइंग अ ऑडिट ऑफ अ रिलायंस. रिलायंस के ऑडिट में व्हेन यू विल चेकिंग द P&L का डेबिट साइड, इट वॉज रिटर्न ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर 6.5 करोड़ रुपीस. कितना लिखा हुआ था? मतलब मुकेश अंबानी की रिलायंस का सिर्फ ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर कितना है? इज इट आई कैचिंग अमाउंट? तो मुकेश अंबानी के पास गए, तुमने बोला सर 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 थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो कैन आई डू द वाउचिंग ऑफ दैट? तो उसने क्या बोला कि हेयर इज द रजिस्टर ऑफ टिकट्स एंड ऑल द ईमेल्स ऑफ द एजेंट्स फ्रॉम होम वी हैव बॉट द टिकट्स. तो दिस इज द रजिस्टर. मैंने पूरा रजिस्टर चेक किया, ईच एंड एवरी आइटम आई काउंटेड, आई टोटल्ड, इट इज कमिंग टू 6.5 करोड़. अब तुम्हें बताओ, एविडेंस ऑब्टेन, इज इट मैचिंग? शुड आई गिव मॉडिफाइड रिपोर्ट और क्लीन रिपोर्ट? ये हो गया नॉर्मल कंपनी ऑडिट. इसे बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल ऑडिट. दिस इज कॉल्ड विच ऑडिट? जब आप कोई चीज को वेरीफाई करते हो और एविडेंस मैचेस विद योर एक्सपेक्टेशन, तो तुम अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देते हो. लेकिन माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कैन यू आस्क मुकेश अंबानी की व्हाई डिड यू स्पेंड 6.5 करोड़? ऑन व्हाट यू स्पेंड यू कैन आस्क, बट कैन यू आस्क मुकेश अंबानी की व्हाई डिड यू स्पेंड? मुकेश अंबानी क्या बोलेगा? टर्न अराउंड. तेरे को क्या लेना रे? मेरा प्राइवेट जेट है, हाँ, मेरे को वॉशरूम भी जाना, मैं हेलीकॉप्टर में जाऊंगा. तेरे को क्या प्रॉब्लम? 6.5 करोड़ लिखा है ना, वाउचिंग कर लिया ना, एविडेंस मैच हो गया ना, अपना काम कर, रिपोर्ट दे, निकल. एम आई करेक्ट और नॉट? लेकिन ये सेम चीज अपन गवर्नमेंट ऑडिट में भी करते हैं. अब तो मुझे बताओ, BHEL इज अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी? अगर BHEL मेरे को 6.5 करोड़ का एविडेंस दे विल शो, I have a still right to ask them कि why did you spend the 6.5 crores, which I cannot ask in case of the which company? Non-government company. क्यों? सर गवर्नमेंट कंपनी में किसका फंड होता है? पब्लिक फंड होता है. That is the Reliance own money, but BHEL is running on the taxes which we pay to the government. गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? On the basis of that, all the government, the total central government, state governments are running on our payment of what? Taxes. जो हम GST देते हैं, कस्टम देते हैं, और इनकम टैक्स देते हैं, ड्यूटी देते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस देते हैं, हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेस देते हैं. On the basis of that, the whole government runs. It means I have every right to ask them the question कि why did you spend? अब मेरे को ये बताओ, there is one journey you want to do it from Hyderabad to Bengaluru. It is a 40 minutes flight.
अब मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूं, एज अ वाइज पर्सन विच डिसीजन यू विल टेक। तुम्हारे पास ऑप्शन है, एक बिजनेस क्लास टिकट विच विल कॉस्ट यू 35,000 रुपीज, एंड देयर इज अ इकोनॉमी क्लास टिकट विच विल कॉस्ट यू 3,500 रुपीज टू ट्रेवल फ्रॉम हैदराबाद टू बैंगलोर, only 40 minutes journey. By the time you will adjust your bum to the seat, the Bangalore will come. अब तुम्हारे पास ऑप्शन है 35,000 स्पेंड करना और 3,500 स्पेंड करना। अब बताओ, ये होता है वाइज डिसीजन। लेकिन these ministers, these people of the government, they will always book the which ticket? Business class. क्यों? क्योंकि that is not something which is going out of their pocket. They are going to get it reimbursed from what? Government. And government वो पैसा कौन से फंड में से देती है? Public funds. Which funds, everyone? Is it something going out of their pocket? तो my question is, was it a needful expenditure or it was a needless expenditure? जहां पे तुम 40 मिनट्स में 3,500 में पहुंच सकते हो, एज अ नॉर्मल, मैं बोलता हूं मेरे फादर जितने भी मर्जी रिच हो जाए, और आई विल बी टू मच रिच इन द फ्यूचर, आई विल नेवर टेक 35,000 का टिकट वेयर आई कैन गो एंड रीच बाय व्हाट? अच्छा मेरे को ये बताओ, बिजनेस क्लास थोड़ा और जल्दी जाएगी या सेम ही प्लेन में है, सेम ही लैंड होंगे, बस एक ही डिफरेंस है, वहां पे क्रू मेंबर रहेगा विच माइट बी ब्यूटीफुल एंड, अरे बस करो बेशर्मा, आगे एग्जाम, तुम ना मतलब इमोशन नहीं समझते मेरा, उस टाइम पे शी माइट बी ऑफरिंग यू अ मील। अब तुम मुझे बताओ 40 मिनट्स में तुम यहां से लंच करके वहां पे टी कर लो ना भाई, लंच करके चले जाओ, 40 मिनट्स में कौन सी भूख लगती है यार तुम्हें, मेरे को ये बताओ। लेकिन उसके लिए यू आर रेडी टू पे 35,000 और रेडी टू पे ओनली 3,500। These kind of scenarios we will commonly find it in the government audits. Which audits में? Where they mostly do the needless expenditure. Which one? तुमने देखा हो ना गवर्नमेंट क्या करती है, देखो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले रोड बनाती है, उसके बाद रोड को खोदती है। फर्स्ट दे कंस्ट्रक्ट द रोड एंड देन दे think that, oh my god, we forgot to put the lines, then they will deconstruct it, and when they will again reconstruct it, oh shit, we forgot to put the another line. तो तुमने देखा होगा मोस्टली जो अपने रोड्स रहते हैं वो सेंटर से कट होते हैं। जैसे ये रोड जा रहा है ना, जैसे मैं तुम्हें, अब मेरी फ्रस्ट्रेशन निकली, अब देखो तुम, ये देखो ये अपना हाईवे है ना, वो कभी भी लाइंस पैरेलली नहीं डालेंगे, so that highway will be smooth going on. They will not do the work on that. They will do the work in this way. वो सेंटर से कैंची लेके ना कट करेंगे पूरी रोड को, ऐसा खोलेंगे फिर डालेंगे, फिर 10-15 days they will put some mud on that, and by the time some trucks and all, you know, free services they will do to put the mud down, then they will finally think that 2-3 accidents, 3-4 deaths will happen. After that they will say, oh shit, we forgot to put this path hole, we forgot to fill this what? Path hole. और उतनी देर में रेनी सीजन आ जाता है, और रेनी सीजन में ये पाथहोल थोड़ा अलग ही दिख रहा है, तो अगेन दोस थिंग्स विल गेट डीकंस्ट्रक्टेड एंड दिस इज हाउ दे कीप ऑन मेकिंग द मनी। अभी मैं तुम्हें बताता हूं, मैं आता हूं हिमायत नगर से, हिमायत नगर का जो पूरा रोड है ना, राइट फ्रॉम द नारायणगुड़ा टू हिमायत नगर, दे ऑलरेडी हैड अ ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड ऑल इन द सेंटर, नाउ दे आर टेकिंग इट आउट एंड पुटिंग इट न्यू, एंड दिस इज कॉल्ड वी आर एनवायरमेंट लवर्स। भाई जो है उसको क्यों काट रहे हो? मतलब दे डू नॉट हैव द ऑडिसिटी टू गिव द वाटर ऑन डेली बेसिस, बट यस they have a capacity to take it out the first old plants and they insert what? New plants, and they call that, yes, we are green, keep the city clean and green, welcome to Hyderabad. ये सब पूरा पैसा बनाने के तरीके होते हैं। This is all the money making techniques which they follow. क्योंकि that corporator who got the contract, he knows that this plant will never die. If we'll keep on giving the water on daily basis, the plant will never die. And if the plant will never die, I will die. क्योंकि मेरे को पैसा नहीं आएगा ना, so he will make sure that the plant should die because he will be not giving the water on time, and he will take out the old plant and will put the what? New plant. And this whole Himayat Nagar का 2.5 kilometers of the road पे he will take a contract of 3 to 4 crore rupees. अब तुम मुझे बताओ, is it a money making machine? But whose money? So propriety word actually has taken its birth origin from the government audit. Which audit? वो same चीज अपन कारों में करते हैं. That same thing we do it in what? कारों.
कारो, अब ये पूरा सेंटेंस पढ़ो और मेरे को बताओ व्हाट डिड यू लर्न. कारो 2020 हैज टू बी सीन फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू. इसका मतलब ये वो 21 एरियाज है जहां पे ऑडिटर क्लाइंट को पूछेगा व्हाई. व्हाट ही विल आस्क टू द क्लाइंट, व्हाई. तुमने ऐसा क्यों किया. अदरवाइज as a financial auditor which we do the normal audit, we do not have the right to ask the why behind the provision, but as a caro auditor you have a right to ask what, why. तुमने प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट प्रॉपरली क्यों नहीं किया. व्हाई डिडंट यू मेंटेन द रिकॉर्ड्स प्रॉपरली. व्हाई डिडंट यू पे योर टैक्सेस. तो एवरीथिंग, द व्हाई, द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट विल कम आउट इन द विच टॉपिक, कारो 20. इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने चोजन दोस 21 एरियाज where the most of the corrupted things will happen. So those 21 areas we are going to understand. So I hope last point you all understood. What is the last point? Caro 2020 has to be seen from which point of view? So it is also known as which audit? तो अगर तुम्हें एग्जाम में आ गया what do you mean by a propriety audit under section 143 subsection 11, तो don't get carried away कि सर ने पढ़ाया नहीं. Propriety audit is nothing but the another name of what? Caro audit. समझ में आ गया. यहां तक कोई डाउट है तो बोलो. तो विद दिस आवर कारो का एप्लीकेबिलिटी इज ओवर. नाउ वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ मेनी क्लॉजेस. अब ये सारे क्लॉजेस तुम्हें वन बाय वन इन सीक्वेंस मैंने लर्न करने हैं. आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू. नाउ व्हाट इज अ क्लॉज नंबर 1. क्लॉज नंबर 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेलिंग यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज 3 एरियाज. व्हाट आर द 3 एरियाज? प्रॉपर्टी, एक सेकेंड मैं रिमूव कर देता हूं. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड व्हाट, इक्विपमेंट. आर यू गेटिंग द पॉइंट? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कैन पुट टुगेदर, कॉल इट एज फिक्स्ड एसेट. तो क्लॉज नंबर 1 किसके ऊपर है? फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर. अब यहां पे अपन क्लाइंट को क्या पूछेंगे? मैं क्लाइंट को 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछूंगा. आई विल आस्क माई क्लाइंट 5 क्वेश्चंस. माई क्वेश्चन नंबर 1, डिड यू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स और नॉट? उन्होंने बोला यस आई मेंटेन. Show me your records whether they are being maintained on quantitative wise, location and details of which assets. मेरे को ये बताओ तुम्हारे पास कितनी प्लांट एंड मशीनरी है. हाउ मच क्वांटिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यू हैव. वेयर इज द लोकेशन वेयर दोस प्लांट एंड मशीनरीज आर लोकेटेड एंड व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ योर विच एसेट्स इंटेंड. तो टेल मी व्हाट इज माय क्वेश्चन नंबर 1 टू माय क्लाइंट अंडर कारो. डू यू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स? आई वांट यू टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन द 3 मैनर. Quantitative details, location details, and third one is what? फिर मेरा क्वेश्चन नंबर 2, मैंने कहा भाई आर दिस प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट बिलोंग्स टू यू? आर यू द टाइटल ओनर ऑफ दिस प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट? ही सेड यस. बट इफ ही सेज नो, देन इन दैट केस आई विल आस्क हिम इन हुज नेम. देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताता हूं. कई बार कंपनीज पता क्या करती है? कंपनीज समटाइम्स डू नॉट बाय द प्लांट एंड मशीनरी इन देयर ओन नेम. It is their plant and machinery only, but they buy it in the name of their subsidiary or what? Associate. But they keep on using the plant and machinery in the company only, but on their own name or in somebody's name. So I will check the title of documents of their plant and machinery and I'll check your name is ABC Limited, but why it is XYZ written? So they said that XYZ is my subsidiary. So I will check the 5 things in that case. Point number 1. मेरा क्वेश्चन नंबर 1, इन हुज नेम यू हैव टेकन द प्लांट एंड मशीनरी? उन्होंने बोला सब्सिडरी में. व्हाट इज माय क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ ग्रॉस कैरिंग वैल्यू? व्हाट इज जीसीवी? उस प्लांट प्रॉपर्टी की ग्रॉस कैरिंग वैल्यू कितनी है? व्हाट इज माय थर्ड क्वेश्चन, पीरियड हेल्ड. सिंस हाउ लॉन्ग यू आर कीपिंग दिस प्लांट एंड मशीनरी इन द नेम ऑफ योर सब्सिडरी? व्हाट इज माय थर्ड पॉइंट, description of plant and machinery. Is this a plant and machinery or is it a land and building, motor vehicle or furniture or fixture? And what is the next point, reason for not in the name of the company. तुमने अपनी कंपनी के नाम पे क्यों नहीं खरीदा? अब तुम सोच के देखो, these many questions financial auditor will ask. Who is only going to ask? That makes it a which audit? Propriety audit. Crystal clear? So tell me, what are my 2 questions out of 5 questions we are done with? पहले मैंने उनको किसके बारे में पूछा? प्रॉपर रिकॉर्ड. प्रॉपर रिकॉर्ड के अंदर 3 क्वेश्चंस, क्वांटिटी डिटेल्स, लोकेशन डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ इंटेंजिबल. फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन वाज ऑन टाइटल, ओनरशिप पेपर. अंडर द ओनरशिप पेपर आई आस्क्ड देम 5 क्वेश्चन. इन हुज नेम यू केप्ट इट, व्हाई यू डिडंट कीप इट इन योर नेम, व्हाट इज द ग्रॉस कैरिंग वैल्यू,
Since when period it is being held in their name and description of the asset. My two questions are over. Then my third question, what is my third question? Do you do physical verification of your plant and machinery at the which intervals? Regular interval. Plus, if you found any changes, if you find any variances or discrepancies, did you show that in your books of accounts? अब सुनना ध्यान से. तो मेरे को ये बताओ, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स में कंप्यूटर्स भी आते हैं, फिक्स एसेट्स में कंप्यूटर्स भी आते हैं, प्रिंटर्स भी आते हैं, ठीक है ना. अब तो मुझे बताओ, इज इट वेरी इजी टू स्टील दोज थिंग्स और नॉट? यस. तो आई एम आस्किंग द क्लाइंट, डू यू डू द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ योर फिक्स्ड एसेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स और नॉट? Say for example, in the beginning of the year, you were having 1800 computers in your office. How many? By the year end, it is 1755. And your record said that you have not sold any computer during the year. इसका मतलब 45 computers have been what? Stolen. It can be computer, UPS और जो भी जितने भी उनके equipments होते हैं. So that is the reason I am asking the third question. Physical verification at regular intervals. And if there is any, what is this word? Discrepancy. Then in that case, you should have shown it in what? Books of. Tell me my three questions broad. Records, title, physical verification. Again repeat. Records, title, physical. Records के अंदर तीन क्वेश्चन. Quantitative details, location details, details of intangible. Title के अंदर 5 क्वेश्चन. In whose name, why it is not in your name, period of holding, gross carrying value, description of the property. फिर मेरा तीसरा क्वेश्चन किसके ऊपर? Physical verification. Do you do the physical verification at regular intervals? And if yes, did you find any kind of what? Discrepancies? And if yes, did you put that in your what? Books of. फिर मैंने उसको, अब ये देखो, मैं तुम्हें क्या बोल रहा था कि 2016 और 2020 में बहुत सारे चेंजेस है. अब these three questions were there in the 2016 का कार्व also, but these last two questions are the changed question. These have been inserted in that. What is the question number 1? Pending litigations relating to which property? Benami property. What do you mean by Benami property? Anybody is having an idea? You are claiming that ki it is your property, but you do not have the sufficient documents to prove that कि it is your what? Property. तो obviously कई बार हमने देखा होगा ना, कई बार open land होता है. You might have seen nearby your areas also. There is one big open land और वहां पे लिखा होता है this land is disputed and its case is trespassing will be prosecuted. ऐसा करके लिखा होता है ना. वो जो land और वो जो properties होती है, they are the undisputed one or disputed one? This is the same question I am asking to my client. Read the point number 4 again. Pending litigation, मतलब pending cases relating to which property? And did you make that disclosure in your what? Financial statement. क्या तुम्हारी प्रॉपर्टीज में कोई ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में डिस्प्यूट चल रहा है और दे आर बेनामी प्रॉपर्टीज? इफ यस, गिव मी द डिटेल्स एंड वेदर यू आर शोइंग इट इन व्हाट? Financial statement. And this is a new part which is added in the plant, property and equipment as compared to which Caro 2016. फिर फिफ्थ पॉइंट इज ऑल्सो न्यू. अब ये सुनना ध्यान से. फिफ्थ पॉइंट इज रिलेटिंग टू रीवैल्यूएशन. विच वन? अच्छा ये बताओ, रीवैल्यूएशन क्या होता है? रीवैल्यूएशन नेसेसरली टू बी अपवर्ड्स और इट में गो डाउनवर्ड्स एज वेल? डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन होती है. तो बताना मेरे को, रीवैल्यूएशन इफ इट विल गो अपवर्ड, what is the question I am asking? I am asking on what basis you did the revaluation? On what basis? मैंने उनको क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा तुमने अपने प्लांट एंड प्रॉपर्टी लास्ट ईयर में 100 करोड़ था, दिस ईयर यू आर शोइंग 250 करोड़, हाउ मच रीवैल्यूड? ऑन व्हाट बेसिस? उन्होंने बोला सर वी हायर्ड अ विच वैल्यूअर? रजिस्टर्ड वैल्यू. मैंने कहा एक काम करो, मेरे को रजिस्टर्ड वैल्यूअर की क्या दे दो? रिपोर्ट. लेट मी सी वेदर ही हैज डन हिज वर्क प्रॉपरली और नॉट. एंड if the revaluation is more than 10%, disclose the change in what amount? अच्छा ये बताओ, 100 to 105, how much is the change? Is it 5% or more than 10%? But if it is 100 to 250 crores, so do I have a right to ask the registered values report? And I want you to disclose the change in the amount in the notes to
accounts. ये मेरे 5 questions हैं which I am going to ask in the clause number 1 when it comes to PPE. What is PPE? अब तुम without board को देखे हुए you have to tell me the 5 questions and inside those 5 questions what I am asking. My question number 1 was relating to, I asked 3 questions to them. Quantity details, location details and details of your intangible asset. मेरा second question क्या है? Title के ऊपर. मैंने कहा are these plant and machinery belong to you? कहता है these many yes and these many no. तो where I will be catching my attention? No. मैंने कहा okay. In whose name? Why it is not in your name? What is the gross carrying value? What is the period held? And what is the description of the property? फिर मैंने पूछा do you keep on doing the physical verification at regular interval? If yes, did you find any kind of discrepancies? If yes, did you show it in books of account? फिर मैंने fourth question क्या पूछा? Is there any pending litigation relating to your which property? Benami property. If yes, did you make the disclosure in financial statement? और मैंने fifth question क्या पूछा कि भैया आपने assets को revalue किया है क्या? कहता हाँ सर. मैंने कहा कितना? कहते 15%. How much? Is it more than 10%? So I need revaluation report and your disclosure in what? Financial statement or notes to accounts. Is it crystal clear? This is called, अब तुम मुझे बताओ, this much investigation a normal financial auditor has a time to do or does not have a time? That makes Caro a which audit? Propriety audit. Did you understand the point? तो अभी अपना clause number 1 हो गया. तो clause number 1 में you are perfect now. ठीक है. अभी अपना second clause क्या है? वहां पे भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो. देखो, कैन आई से दैट इन्वेंट्री इज मोर करप्टेड देन फिक्स्ड एसेट? सबसे ज्यादा फ्रॉड किसमें होते हैं? इन्वेंट्री. तो इन्वेंट्री में तो फिजिकल वेरिफिकेशन इज ऑप्शनल और मस्ट. तो भैया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि वेदर यू कैरी फिजिकल वेरिफिकेशन एट विच इंटरवल्स एंड टेल मी व्हाट इज योर प्रोसीजर ऑफ व्हाट? फिजिकल वेरिफिकेशन. What is your coverage of physical verification? And if you found any kind of discrepancies more than what? 10%. Did you adjust that in what? Books of account. इसका मतलब we did not go that much deeper when it was PPE in the clause number 1. But we went in the physical verification more deeper because it's a which one now? Inventory. Tell me the 3 questions I am asking in the inventory now. Point number 1. आप physical verification करते हो? उन्होंने बोला हाँ. मैंने कहा एक काम करो, व्हाट इज योर प्रोसीजर? आप कैसे स्टार्ट करते हो, कैसे एंड करते हो? टेल मी योर टोटल प्रोसीजर ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन एंड व्हाट डू यू कवर? डू यू कवर वन ब्रांच और ऑल द ब्रांचेस? कवरेज. एंड व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? इफ यू फाउंड एनी डिस्क्रिपेंसीज मोर देन व्हाट? अब सुनना ध्यान से. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर रहा है 90 करोड़ का स्टॉक. हाउ मच? गोडाउन में 78 करोड़ ही है. बुक्स अकाउंट्स में कितना है? गोडाउन में जब फिजिकली वेरीफाई किया तो कितना है? तो भैया कितना डिस्क्रिपेंसी है? 12 करोड़. कितना डिस्क्रिपेंसी है? 12 करोड़. अब तो मुझे बताओ 12 करोड़ को 90 के ऊपर कंपेयर करो. इज इट मोर देन 10%? तो डिटेल्स इन द विच अकाउंट्स? बुक्स ऑफ अकाउंट. तुमने ये मेरे को क्यों नहीं बताया? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग टू द क्लाइंट. तो व्हाट आर द 3 थिंग्स इन द फिजिकल वेरिफिकेशन? प्रोसीजर, कवरेज, discrepancy. Procedure, coverage, discrepancy. Discrepancy में more than what? Show me the details. And why did you adjust it in books of account? Up to this point, it was there in 2016 also. 2020 वाले में this is a change. Now what is a change? और इसका मतलब तुम्हारा concentration new clauses के ऊपर होना चाहिए, removed clauses के ऊपर होना चाहिए और changed clauses के ऊपर है. It means almost there are 10 to 20 areas which you should know out of all the 21. Are you getting the point or not? So as I told you कि ICAI is having a habit of asking you the comparison between what? 2 caros, 16 and 20 का. तो तुम्हें अगर आया comparison, तो what if they will ask you as a chartered accountant of the financial year 21-22, do you find any changes in caro 16 and caro 20 when it comes to inventory? आंसर कैसे प्रेजेंट करोगे? एज पर कारो 2060 इन्वेंट्री वाज ओनली हैविंग 2 क्वेश्चंस और 1 क्वेश्चन, which was relating to what?
फिजिकल वेरी, लेकिन इन द कारो 2020 इट वाज मेड मोर एग्जॉस्टिव, तो वी एडेड वन मोर क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन वी एडेड? लुक एट दिस पॉइंट. इफ द कंपनी टुक एनी विच लोन. अच्छा, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन. शॉर्ट टर्म, तो वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. व्हाट इज द फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल? तो इसका मतलब इन्वेंट्री इज माई वर्किंग कैपिटल लोन और नॉट? यस. तो इफ यू हैव टेकन एनी वर्किंग कैपिटल लोन विच इज मोर देन व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ करंट एसेट्स एज अ वर्ड, वो लोन लेने के लिए तुमने इन्वेंट्री को सिक्योरिटी दिया है. You took a loan of more than what? 5 crores. And to give the security, you used your inventory to give it as a what? Security. I asked them the question. बोले हाँ sir, recently लिया. If yes, did you file quarterly statements with whom? Bank. अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताता हूं. अपना एक ऑडिट आएगा, बैंक ऑडिट बोल के. Which ऑडिट? जब भी बैंक आपको वर्किंग कैपिटल लोन देता है, इफ इट इज मोर देन व्हाट? 5 crores, तो बैंक एक्सपेक्ट करता है कि एवरी क्वार्टर एंडिंग स्टॉक स्टेटमेंट शुड बी फाइल्ड बाय द बोरोअर टू द बैंक. क्वार्टरली और मंथली? क्वार्टर. इफ इट इज लेस देन व्हाट? 5 crores, इट इज मंथली. समझ में आ रहा है? अब क्वार्टर एंड कौन सा हुआ भाई, बताना मेरे को. जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च. तो बैंक को 4 क्वार्टरली स्टेटमेंट जानी चाहिए. तो आई आस्क्ड देम, यू टुक अ लोन? उन्होंने बोला हाँ. मैंने कहा कितना? कितना? 11 crores. हाउ मेनी crores? मैंने कहा नेचर ऑफ द लोन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? बोला शॉर्ट टर्म. मैंने व्हाट इज द नेचर? वर्किंग कैपिटल लोन. आर द कंडीशंस मैचिंग? इज इट मोर देन 5 crores? व्हाट इज माय क्वेश्चन नंबर 1? डिड यू फाइल क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद होम? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. मैंने कहा शो मी दो स्टेटमेंट. एंड सेकंड थिंग, वेदर योर स्टॉक इज मैचिंग विद व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इफ नॉट, डिटेल्स. Did you get the point? With that, my clause number 2 is also over. Like that, 21 clauses we have to do. Little bit deeper, little bit. अच्छा, exam में कैसे पूछेंगे? They will ask you the question on particular clause. It means until and unless you don't know the in-depth knowledge of the clause, you will not be able to answer it. Point number 1. Point number 2, you should know the clause number. अब सुनो, exam में question आ गया. XYZ Limited took a cash credit loan of 7 crore rupees on the basis of its inventory as a security, but when the auditor confirmed, it sent 2 semi-annual stock statements to the bank from where they have taken the loan. Briefly comment. तुम्हें क्या लगता है लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्टली? कारो का क्लॉज 2 बता दो. अब यहां पे अपने को पता चल गया कि भैया ये क्वेश्चन है कारो का. कारो में क्लॉज नंबर 2 का, ठीक है ना. क्लॉज नंबर 2 में कौन सा? लेफ्ट साइड क्वेश्चन और राइट साइड क्वेश्चन? राइट साइड, क्योंकि एक क्वेश्चन है लोन का. लोन इज मोर देन व्हाट? तो अपने को 2 क्वेश्चन पूछने हैं कि भैया मोर देन 5 करोड़ है तो तुम्हें क्या फाइल करना है? क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट विद दैट बैंक फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन अ लोन. लेकिन एज पर द क्वेश्चन ही इज फाइलिंग क्वार्टरली और सेमी एनुअली. दैट इज वायलेशन. सेकेंड पॉइंट मैंने क्या पूछा कि व्हाट इज द सिक्योरिटी यू हैव गिवन? इन्वेंट्री. And is it matching with your what? Books of account. If no, give me the details. अब यहां पे आंसर कैसे लिखेंगे? सुनो, आंसर फर्स्ट यू विल मेंशन क्लॉज नंबर, देन यू विल मेंशन पैरा नंबर, देन यू विल मेंशन सेक्शन नंबर, देन यू विल मेंशन कारो. अगर तुमने ये 4 चीजें रिपीट कर दी ना आंसर में, द एग्जामिनर, द वैल्यूअर विल गो फ्लैट. अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? एज पर क्लॉज नंबर 2. रिपीट. ऑफ पैरा 3 ऑफ, देखो हमने फर्स्ट पैरा में किया था डेट एंड फाइनेंशियल ईयर. सेकंड पैरा में हमने अंडरस्टैंड किया एप्लीकेबिलिटी. अभी अपना कौन सा पैरा चल रहा है? थर्ड पैरा चल रहा है. देखो ये देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में वी हैव डन व्हाट? एक सेकेंड, वेयर इज दैट? देखो, दिस इज पैरा नंबर 1. क्या क्या हमने कवर किया था? डेट एंड फाइनेंशियल ईयर. पार्ट 2 में हमने पैरा 2 में क्या कवर किया? अब एप्लीकेबिलिटी के बाद डायरेक्टली वी केम टू व्हाट? 21 क्लॉजेस. तो 21 क्लॉजेस इज नथिंग बट नोन एज व्हाट? पैरा 3. पैरा 3 ऑफ सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 11 ऑफ कारो 2020. ये पूरा सेंटेंस लिख के आना. मैं बोलता हूं वो ऑन द स्पॉट ही विल फॉल इन लव विद यू.
और 5 में से 5 मार्क दे देगा विदाउट लुकिंग एट एन आंसर। मेरे को जल्दी बताओ क्या लिखेंगे अपन पहले, एज पर क्लॉज नंबर 2 ऑफ पैरा 3 ऑफ सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 11 relating to Caro 2020. This XYZ Limited company has taken a loan of what? 7 crores, but only and only submitting semi-annual stock statements with whom? Bank. But as per clause 2 of the Caro 2020, auditor should be asking the company a quarterly statements, not the word semi-annual. And second thing the auditor should be concerned about is whether there is any discrepancy in the value of what? Inventory. If there is a discrepancy, it should have been notified in the what? Books of accounts. Did you get the point? अपना आंसर खत्म होने का 4 मार्क मिलते तुम्हें सिर्फ ये लिखने के, समझ में आ रहा है? और दिस क्वेश्चन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कारो में 2020 का क्वेश्चन केम इन योर मे 2022 एग्जामिनेशन. वंस द 21 क्लाउजेस विल बी ओवर, आई विल टेक यू टू द May 22 का क्वेश्चन पेपर and within nanosecond you will be able to give me the answer. But after the completion of 21 clause. अब तुम मुझे बताओ, मेरा पहला क्लॉज क्या था? PPE. दूसरा क्लॉज इन्वेंटरी. PPE में मेरे कितने क्वेश्चन थे? 5. पहला क्वेश्चन था रिलेटिंग टू रिकॉर्ड्स, दूसरा टाइटल, तीसरा फिजिकल वेरिफिकेशन, फोर्थ बेनामी प्रॉपर्टी एंड फिफ्थ वन रिलेटिंग टू रीवैल्यूएशन. इनसाइड कंटेंट यू नो. सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्लॉज वाज रिलेटिंग टू इन्वेंटरी में मेरे 2 ही क्वेश्चन थे. पहला क्वेश्चन फिजिकल वेरिफिकेशन, उसके अंदर 3, प्रोसीजर, कवरेज, डिस्क्रिपेंसी मोर देन 10%. डिड यू एडजस्टेड इन व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट. इतनी बार रिवाइज करवाऊंगा ना कि नाइट 3 o'clock ऑल्सो इफ आई चेक यू अप, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू टेल मी द क्लॉज नंबर. ठीक है ना? अब बताओ पार्ट 2, सेकेंड पार्ट में अपन गए, कितना गया था? If the company has taken any working capital loan of more than and you have given the inventory as a security, तो मेरे को 2 क्वेश्चन पूछने हैं. Do you file quarterly stock statement with that bank or not? And if there is any valuation का difference, did you do the adjustment in what? Books of accounts. अपने 2 clauses हो गए. So what is the third clause everyone? Loan to what? Directors, promoters and related party. What is the name of the topic? Loan to directors, promoters and which party? Related party. और ये वाला क्या था? Inventory. अब सुनना ध्यान से. This is same as 2016. Are you getting the point? But it is very critical topic. After inventory, the second most corrupted area is related party transaction. Which one everyone? पहले मेरे को ये बताओ, डू यू रिमेंबर 550? हमने किसके बारे में पढ़ा था? इज इट वेरी इजी टू डू द फ्रॉड विद देम और डिफिकल्ट? इजी. इसलिए अपन उसके यहां पे देखो, लोन टू हुम? डायरेक्टर. डायरेक्टर इज योर व्हाट? रिलेटेड पार्टी. लोन टू हुम इज योर व्हाट? एंड लोन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, दैट इज ऑल्सो योर व्हाट? रिलेटेड पार्टी. मतलब यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेलिंग द ऑडिटर टू बी सुपर केयरफुल, because this is the most corrupted area where mostly the companies will do the frauds. Are you getting the point? तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस है मेरे को पूछने. How many questions? 6. मेरा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या है? If the company gave any which loan? Related party loan. To whom they have given? Was it a company? Was it a partnership firm? Was it a LLP? Or was it a any other person? Did you understand my questions? So what is my question number 1? If you have given what? Loan to related party, was it a what? Company, partnership firm, LLP and other? If yes, give me these details. What is the detail number 1? Total loans given plus outstanding on balance sheet date to subsidiary, associates and joint. अब सुना ध्यान से. Total loan given, say for example, in my liability asset side, my total loans are 500 crores. How many crores? Out of that, I have given 180 crores to my related parties. Out of 500, I have given. तो ये 2 इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं हम. अब पढ़ो दोबारा से. Total loans given plus outstanding of balance sheet which you have given to subsidiary.
तो तुम्हारे टोटल लोन कितने हैं और तुमने अपने रिलेटेड पार्टी को कितने दिए। समझ में आ रहा है? इंफॉर्मेशन नंबर 1। इंफॉर्मेशन नंबर 2, टोटल लोन्स गिवन प्लस आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन बैलेंस शीट टू द पार्टीज अदर देन। अब तो मुझे ये बताओ, अगर मेरे टोटल लोन 500 करोड़ है, उसमें से 180 करोड़ रिलेटेड पार्टी है, तो अदर देन रिलेटेड पार्टी कितने हुआ? तो यहां पे क्या आएगा? 500 180 और यहां पे आएगा 500 320। डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ रीड पुट टुगेदर बोथ द साइड्स। see the common thing between both the side. total loans given कितना दिया मैंने? टोटल 500 करोड़। इमेजिन 500 करोड़ 500 करोड़, उसमें से मैंने रिलेटेड पार्टी को कितना दिया? तो इसका मतलब नॉन रिलेटेड पार्टी को कितना है? 320। तो 500 180 500 320। इजी टू रिमेंबर। अब समझ में आना? तो डिड यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन नंबर 1? तो व्हाट माय क्वेश्चन नंबर 1 वाज कि हे कंपनी, डिड यू गिव एनी लोन टू व्हाट? Tell me, who was your related party to whom you have given a loan? Was it a company, partnership firm, LLP, or other person? Then I'm asking the two questions more in the same question. How much was your total loan? Out of which how much you gave it to? And how much was your total loan? Out of which how much you gave to non-related party? Question number 1 is over. My question number 2. Whether terms and conditions are regular or reasonable to whose interest? अब यहां पे सुनना, मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मेरे पास 10 करोड़ रुपीस है। कितने हैं? दिस इज द डायरेक्टर हु केम टू मी, कि वो बोल रहा है कि सर मेरे को लोन दे दो, आई एम रेडी टू पे यू 8% इंटरेस्ट। हाउ मच? ये बैंक है, ये मेरे को बोल रहा है कि सर आप अपना 10 करोड़ हमें दे दो, वी आर रेडी टू पे यू 12% इंटरेस्ट। कितना? मेरे को मार्केट कितना दे रही है और मेरे को ये डायरेक्टर कितना दे रहा है? मैं किसको लोन दूं? व्हाट इज माय वाइजेस्ट डिसीजन? बैंक को ही दूंगा ना, क्योंकि दे आर पेइंग मी व्हाट। और यहां पे कितना आ रहा है? तो इफ आई स्टिल गिव द लोन टू माय डायरेक्टर, मतलब कुछ तो समझ में आ रहा है? तो वी नीड योर टर्म्स एंड कंडीशंस टू बी इररेगुलर और रेगुलर। अच्छा, से फॉर एग्जांपल, इफ दिस डायरेक्टर इज ऑल्सो रेडी टू पे मी 12% एंड बैंकर इज ऑल्सो रेडी टू गिव मी 12%, अब बताओ एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। भाई एज एन ऑडिटर मेरे को तुम्हारे रिलेटेड पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तुम्हारे रिलेटेड पार्टीज के नॉन आर्म्स लेंथ प्राइस ट्रांजैक्शन से प्रॉब्लम है। विच प्रॉब्लम आई हैव? नॉन आर्म्स लेंथ प्राइस। क्या होता है नॉन आर्म्स लेंथ प्राइस? लोअर और हायर देन मार्केट प्राइस। अगर डायरेक्टर 12% दे रहा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, बैंक भी इतने दे रहा है, डायरेक्टर भी उतना दे रहा है। बट प्रॉब्लम इज व्हेन you are giving a loan to a person who is only giving you 8% instead of lending your money in the bank which is ready to give you, kuch to gadbad. That is my question number 2. Read my question number 2 again. Whether terms and conditions are what? Regular, reasonable to whom? Company. Question number 2 समझ में आया? फिर मैंने question number 3 बोला, मैंने कहा चलो ठीक है, you have given the loan to your directors, no problem. But are they paying the regular principal repayment and interest payment to you? Okay, ठीक है, you did a mistake, it's fine. You gave the loan to your what? Director. What do you expect from the director then? Repayment on time and interest on time. So this is my question number 3. What is my question number 3? Ensure that principal repayments and interest payment is regular on or before the which date? Due date. Tell me my 3 questions in the clause number 3 so far. To whom you have given the related party loan? Is it a company, partnership firm, LLP, or a? And give me 2 details. What were your total loans? Out of which how much to related, how much to unrelated? Question number 2. Are your terms and conditions regular and reasonable? Question number 3. Are they paying you your interest and repaying you your principal on time? ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पढ़ो। इफ दे आर ओवर ड्यू फॉर मोर देन, डिड यू टेक एनी करेक्टिव और रेमेडियल मेजर्स टू रिकवर इट और नॉट? तो मेरे को बताओ, यू वेट 10th June was the date of payment of the interest by this particular director. 10th July over, 10th August over, 10th September over. How many months are over? Did she pay or did not pay?
Is it overdue more than what? Then what is my responsibility? Should I leave the loan as it is or should I take the measures to recover it? अब तुम मालूम है आईसीए इतना सही बॉडी है ना, मतलब तुम्हें इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया उसने। आईसीआई ने पूछा इज सेंडिंग द रिमाइंडर नोटिस इज इनफ टू क्वालिफाई एज अ रिकवरी मेजर। ये तुम्हें करेक्ट इनकरेक्ट में क्वेश्चन पूछा उसने। सेंडिंग द रिमाइंडर नोटिस विल बी ट्रीटेड एज रिकवरी मेजर और सेंडिंग द लीगल नोटिस विल बी ट्रीटेड एज अ रिकवरी मेजर। नो, रिमाइंडर नोटिस इज इनफ। ये बाद में क्लैरिफिकेशन आई। तो अगर तुम्हें एग्जाम में आता है कि इज सेंडिंग द लीगल नोटिस विल बी ट्रीटेड एज रिकवरी मेजर और सेंडिंग अ रिमाइंडर नोटिस विल बी ट्रीटेड एज रिकवरी मेजर, व्हाट इज योर आंसर? रिमाइंडर नोटिस इज इनफ टू बी क्वालिफाइड एज अ विच मेजर? रिकवरी में। जरूरी नहीं है कि आपको उसको लीगल नोटिस भेजना है, सिर्फ एक चिंदी सा एक व्हाट्सएप मैसेज भी भेज दो ना कि भैया यू आर ड्यू फॉर मोर देन व्हाट 90 days, please pay your money on time. That is also called a which measure? Recovery. Is it clear, everyone? So tell me my 4 questions. To whom you have given? Quickly, to whom you have given? Are the terms and conditions regular? Are they paying interest and repayment regularly on or before due date? And 4th point, if it is overdue for more than what? Did you take initiatives to recover? Or initiatives means what? Sending a legal notice or reminder notice is enough? Clear. Next one. फिर मैंने उसको ये पूछा, मैंने कहा सर ये दोनों पॉइंट्स पे क्या लिखा हुआ है? चेंज। मतलब up to 4 points it was there in 16. 2 points have been added. मतलब so far हमने जितने भी क्लॉजेस किए हैं सब अमेंडेड क्लॉज ही हैं। क्लॉज नंबर 1 में भी 2 points were added, इन्वेंट्री में 1 point was added और यहां पे भी 2 point. It means 4 questions became what? 6 questions now. अभी मेरा 5th क्वेश्चन क्या? ध्यान से सुनना। मैंने सिंपल पूछा, मैंने कहा कंपनी, बोले हाँ। मैंने कहा वट एवर यू हैड द एग्जिस्टिंग रिलेटेड पार्टी लोन्स, डिड यू डू एनी काइंड ऑफ रिन्यूअल? डिड यू गिव देम एनी काइंड ऑफ फ्रेश लोन? डिड यू गिव देम एनी काइंड ऑफ व्हाट? एक्सटेंशन और नॉट? इफ yes, tell me the aggregate of such dues and percentage of such loans on your total loans and what? Advances. मैं सिंपली कंपनी के पास गया, मैंने कहा ठीक है सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस में आई एम सेटिस्फाइड, गिव मी वन लास्ट आंसर। उन्होंने बोला चप्पो। मैंने कहा सर, मैंने बोला सर ये डायरेक्टर है। कहते हाँ हमारा डायरेक्टर है। मैंने कहा यू ऑलरेडी गिव 100 crores ऑफ लोन टू दिस डायरेक्टर, डिड यू रिन्यू दिस लोन? डिड यू गिव एनी फ्रेश लोन और डिड यू गिव एनी एक्सटेंशन? ये 3 वर्ड याद कर लो। व्हाट आर द 3 वर्ड? रिन्यूअल, फ्रेश, एक्सटेंशन। मतलब यू ऑलरेडी डिड द पापम, यू आर डूइंग मोर पापम और नॉट? भैया रिलेटेड पार्टी को लोन देना इज पुटिंग योर मनी लाइक इन अ वेल और नॉट? फ्रॉम द वेल द मनी विल कम आउट और विल नॉट कम आउट? मैंने वही पूछा, मैंने कहा यू ऑलरेडी डिड अ पापम बाय गिविंग अ लोन टू योर विच डायरेक्टर? Did you do it again by giving a which loan? Fresh loan. By giving a what? Renewal. By giving a what? Extension. उन्होंने बोल रहा है sorry to say sir, but yes. मैंने कहा useless fellow. Do one thing now. Give me the aggregate of what? Such dues. And not only that, what is the percentage of such loans on your what? Total. उन्होंने बोल रहा है sir, I did not give it to all the directors. My total loans are 500 crores. कितना? Only 100 crores of loan मैंने renew किया. तो what is the percentage? 20%. Did you understand the answer? And what is the total amount? 100 crores. So these are the 2 questions. Did I get in question number 5? Yes? अभी मेरे को मालूम है तुम्हें भूख लग रही है. I know. But ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे ही तुम जाके फर्स्ट देखो बाइट खाते खाते ना, तो इसके क्लॉजेस याद करना। क्लॉज नंबर 1 क्या था? पीपीई, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा रिलेटिव। पीपीई में ये तुम्हारा लंच हो जाएगा खत्म। रिवीजन कर लेना लंच में, फिर मेरे को थैंक यू बोलना कल, ठीक है? चलो लास्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? लास्ट, क्योंकि मैं बीच में तो छोड़ के जाऊंगा नहीं, क्योंकि क्लॉज नंबर 4 ऑनवर्ड्स विल स्टडी फ्रॉम टुमारो। अब सुनना ध्यान से, इफ देयर आर एनी व्हाट
RPL stands for related party loans. Right or not? Which kind of? Either payable on demand or no repayment terms are what? Decided. मैंने कंपनी को पूछा, मैंने कहा तुमने रिलेटेड पार्टी लोन्स दिए हैं? कहते हाँ. मैंने कहा व्हाट इज द नेचर? कहते सर दे आर पेबल ऑन डिमांड. दे आर पेबल ऑन व्हाट? मतलब जब भी हम डिमांड करेंगे द डायरेक्टर्स हैव टू रीपे द लोन बैक टू द कंपनी. Either they are repayable on what? Demand. And second one, मेरे को प्रॉब्लम इसमें नहीं है, मेरे को इसमें क्या बोला सेकंड पॉइंट, मतलब इज देयर एनी ड्यूरेशन और नो ड्यूरेशन? पैसा दे दिया, जब उनके पास होगा तभी वापस आएगा. तो टेल मी वन थिंग, इज इट अ राइट थिंग और रॉन्ग थिंग? मेरा दिमाग खराब हो गया. मैंने बोला एक काम करो, गिव मी द एग्रीगेट ऑफ व्हाट? सच लोन. How many loans are those loans which you have either payable on demand or for which no payment terms has been what? Decided. Point number 2, what is the percentage of aggregate of such loans on what? Total loans. And last point, aggregate amount granted to promoters and related parties. Who are your promoters and who are your related parties to whom you have given these mad fellows like loans? What are the loans he has given? Either payable on what? Demand or on which? No payment. तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए सर? 6. रिलेटेड पार्टी लोन बोल दो, उसके बाद यू आर गुड टू गो. टेल मी द 6 क्वेश्चंस. प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट भूल जाओ, इन्वेंट्री भूल जाओ. आई नो दैट इज फिक्स्ड इन योर हेड. नाउ रिलेटेड पार्टी लोन इज लिटिल बिट मोर टू कंज्यूम. 6 क्वेश्चंस बताओ. क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुमने रिलेटेड पार्टी लोन्स दिए? क्या वो कंपनी थी, पार्टनरशिप फर्म थी, LLP थी या अदर पर्सन? मेरे को टोटल लोन्स बताओ, उसमें से रिलेटेड को कितना, नॉन रिलेटेड को कितना. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, आर योर टर्म्स एंड कंडीशन रेगुलर एंड रीजनेबल टू द कंपनीज इंटरेस्ट और नॉट? मेरा क्वेश्चन नंबर 3, आर दे पेइंग द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन और बिफोर ड्यू डेट? मेरा क्वेश्चन नंबर 4, आर दे ओवर ड्यू फॉर मोर देन? इफ यस, डिड यू टेक नेसेसरी एक्शंस? और नेसेसरी एक्शन का मतलब लीगल और रिमाइंडर. पॉइंट नंबर 5, मैंने कहा कि डिड यू डू एनी काइंड ऑफ रिन्यूअल, एक्सटेंशन, फ्रेश लोन टू योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेटेड पार्टी लोन? इफ यस, टेल मी द टोटल अमाउंट ऑफ दैट एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दैट अमाउंट ऑन योर टोटल लोन्स. फिर मैंने पूछा, मैंने कहा डिड यू गिव सच काइंड ऑफ लोन्स वेयर पेबल ऑन डिमांड and where there is no payment terms decided? बोले हाँ. मैंने कहा give me the total details of that, percentage of total and to whom you have given. Did you get the point? So that brings an end to our clause 1, 2, 3. तो अब जब आंसर आएगा तो पहले अपन क्या मेंशन करेंगे? क्लॉज नंबर, पैरा नंबर, सेक्शन नंबर, तारो नंबर. Did you get the point? So thank you so much for lending your patient ears. I'll borrow it again tomorrow. कल करेंगे, ठीक है? और कल ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लॉज, मेक श्योर दैट व्हाइल कमिंग इनटू द क्लास इट शुड बी देयर ऑन योर फिंगर टिप्स. आर यू गेटिंग द पॉइंट? 2 मिनट लगेंगे, रिवाइज कर लेना, ठीक है? क्योंकि लाइक दैट वी हैव टू डू 21. आई एम नॉट स्केयरिंग यू गाइस, बट यस दैट इज अ फैक्ट. चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड लंच.